Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। This morning we are so happy to be with you. और आज की सुबह एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होकर हम आनंदित हैं। We really thank God for His faithfulness all through our lives. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी पूरी विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे जीवन में है। And we also thank God for His goodness that He has shown us in a very real way. और हम धन्यवाद करते हैं उसके उस विश्वास योग्यता के लिए जो उसने वास्तविक रूप से हमारे जीवनों में दिखाई है। He is good God. वो एक भला परमेश्वर And है He is good all the time. और वो सदा भला है। Today we are going to talk on the Christian stewardship. आज हम बातचीत करेंगे एक मसीह भंडारीपन के बारे में, Because this is also very important to be a good steward. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छे भंडारीपन का। God blesses the one who is a good steward. परमेश्वर उनको आशीष देता है जो एक अच्छे भंडारी होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What does this mean, being a good steward? और एक अच्छा भंडारी होने का क्या अर्थ है? It simply means इसका साधारण रूप से अर्थ ये है that somebody has given you some responsibility or with resources. इसका अर्थ ये है कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ सुविधाओं के साथ आपको जिम्मेदारी दी है। And how you use those resources and responsibility. आप कैसे उन साधनों का इस्तेमाल एक जिम्मेदारी के साथ करते हैं। And this is what the Christian stewardship is all about. और यही है एक मसीह भंडारीपन का होना। Bible has so many references and passages explaining what is Christian stewardship. बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है और समझाती है कि एक मसीह भंडारी क्या होता है। And this is in the same series of restoration and consolidation. ये हमारा वही क्रम चल रहा है पुनः स्थापन करना और इकट्ठा करने के क्रम में। This is another component to this teaching. ये उसी शिक्षा का एक और अलग तत्व है। Hallelujah. हालेलुया। So we are talking about few things that God has entrusted to us in this life. हम कुछ बातचीत करेंगे कि कुछ चीजें जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखी हैं। You see, in the beginning, God gave the responsibility of His garden to Adam and Eve. अब देखिए परमेश्वर ने शुरू में ही आदम और हवा को एक जिम्मेदारी दी थी अदन की वाटिका में। The Bible says, Genesis 2 and verse 15. उत्पत्ति 2 और 15 में He has given this responsibility to Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को एक जिम्मेदारी दी। He said, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। Hallelujah. He was Hallelujah. supposed to work and take care of the property that God had given to him. परमेश्वर ने उसको काम दिया था उस संपत्ति का देखभाल करने के लिए और उसमें काम करने के लिए। God has given him all the facilities that he needed at that time. परमेश्वर ने उसको सारी सुविधाएं उस समय के हिसाब से दी थी जिनकी उनको आवश्यकता थी। There was sufficient water. वहाँ पर पर्याप्त पानी था। There were so many trees. वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। They were yielding good fruits. और उनमें बहुत अच्छे फल उत्पन्न होते थे। And Adam had the liberty to take any fruit from the tree except that the forbidden tree. और आदम को ये छूट थी कि वो सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं केवल एक वृक्ष के अलावा। So this is the mind of God that He gives His people
some responsibility and also he gives resources to carry it out. तो ये परमेश्वर का एक मन था कि उसने मनुष्य को, आदम को वो सारे सुविधाएं दी थी कि ताकि वो उनकी देखभाल करे और उनको संभाले। And in the same way, और इसी रीति से we find it today और आज भी हम पाते हैं that God is really interested to give us many more blessings. और आज भी परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, But sometimes we lose them or we miss them. और कई बार हम उनको छोड़ देते हैं और उनको भूल जाते हैं। Why? क्यों? Because he knows that we are not good stewards. क्योंकि वो जानता है कि हम अच्छे भंडारी नहीं हैं। So in this sense, और इस सेंस में I want to teach you that we need to become a good steward of whatever God has given to us. तो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि हमको एक अच्छा भंडारी बनना है, जो कुछ परमेश्वर ने हमें चीज़ें दी हैं उसका। Sometimes we understand that stewardship is just giving tithe to the church and making some donations to the ministries. कई बार हम ये सोचते हैं कि सेवा के अंदर 10वां अंश देना और भाग देना सेवाओं के अंदर, कि केवल यही है भंडारीपन होना। No, that is one thing. ये तो केवल एक बात है, But the true meaning of stewardship goes more deep than that. लेकिन और भंडारीपन में और अधिक आगे जाने और उसकी गहराई में उतरने में और भी बातें हैं। Hallelujah. Hallelujah. How we can apply it today कैसे- of being a good steward? कैसे आज हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं एक अच्छा भंडारी होने के बारे You see, में। we need to understand that God has given us this life आपको और हमको समझना होगा कि परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है and He also has given us time, और उसने हमको समय दिया है, health, स्वास्थ्य दिया है, wisdom, बुद्धि दी है then wealth और धन संपत्ति दी है and relationship. और संबंध दिए हैं, So many things He has given us to sustain us on this earth. और इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। But once we come to Jesus Christ our Lord, और जब एक बार हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, we become His children. हम उसकी संतान बन जाते So हैं, then He gives us some responsibility as well. और तब वो हमें एक जिम्मेदारी देता है। In that sense, how we use our time, और इस सेंस में कि हम कैसे अपने समय का इस्तेमाल करते हैं। if we use our time wisely, यदि हम अपने समय का बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, God will be happy with us तो परमेश्वर हमारे साथ प्रसन्न होगा, because He is seeing, He is watching from heaven that we are using our time to fulfill His purposes on this earth. तब वो स्वर्ग से देखेगा कि इस पृथ्वी पर जो समय हमको दिया गया है, हम उस समय का इस्तेमाल उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। If we are wasting away the time, और यदि हम अपने समय को बर्बाद करते हैं, God will not give us fruitful time or blessings. तब परमेश्वर हमें एक उपयुक्त समय और आशीष नहीं देगा। Why? Because we are misusing His wealth or His talent that He has given to us. क्योंकि हम जो उसने हमें सुविधाएं दी हैं और हमको तोड़े दी हैं, उनका इस्तेमाल हम गलत रीति से कर रहे हैं। Health is another blessing from God. जो स्वास्थ्य है वो एक और परमेश्वर की ओर से आशीष है। I want to do so much work for God, मैं परमेश्वर के लिए बहुत अधिक काम करना चाहता हूँ, and that is why we need good health. और इसीलिए हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की We आवश्यकता ask है। you to pray for us so that God will continue to give us good health so that we can do His work on this earth. और इसीलिए हम आपसे कहते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उसको हम कर सकें। So with your good health, what do you do? तो आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं? Do you keep your health, do you use your health and strength
to extend the kingdom of God on this earth? क्या आप अपने स्वास्थ्य को परमेश्वर के महिमा के लिए इस पृथ्वी पर उसके कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, Or you are misusing your health? और या फिर अपने स्वास्थ्य का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, You are consuming those things which are not allowed as per the word of God? या उन चीजों को ले रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से मना है। If you are a healthy and strong person, यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, and are you frightening other people, क्या आप दूसरे लोगों को डरा करके रखते हैं, and you are misusing your health? क्या आप अपने स्वास्थ्य का गलत इस्तेमाल करते हैं? What about wealth, और धन संपत्ति के विषय में क्या है? money? पैसे के। God gives money only to extend His kingdom on the earth. परमेश्वर अपना धन इसलिए देता है कि अपने धन के साथ आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, That is the main purpose of a believer. और ये एक विश्वासी का मुख्य उद्देश्य होता He है। gives us money वो उसको पैसा देता है so that we can eat good food, ताकि वो एक अच्छा खाना खाए, we have good health, हमारे एक अच्छा स्वास्थ्य हो, and use it for the kingdom of God. और उसको परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। He gives us time वो हमें समय देता है so that we can use it for the kingdom of God. ताकि उसका इस्तेमाल हम परमेश्वर के राज्य के लिए He करें। gives us wisdom. वो हमें बुद्धि देता So है positively we should use it for the kingdom of God. ताकि सकारात्मक रूप से उसको हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। Wealth, धन it संपत्ति belongs to God. वो परमेश्वर से संबंध रखती है, And everything that comes to us is from God. जो कुछ हमारे पास आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। The Bible says, बाइबल कहती है Colossians 1 कुलुसियों 1 and verse 16 and 17. और 16 और 17 पद, We'll read it in English, then we'll read it in Hindi also. और उसको हम पढ़ेंगे In fact, हिंदी, we can read it from verse 15. और यहाँ तक कि हम 15 पद से उसको पढ़ेंगे। It's about Jesus Christ our Lord. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Colossians 1, कुलुसियों 1 15, 16 and 17. 15, 16 और 17। And it says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. 15 पद, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God has made this very clear तो परमेश्वर ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया है that everything that is on the earth or beneath the earth or above the earth belong to God. कि जो कुछ पृथ्वी पर, जो कुछ पृथ्वी के नीचे और जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है वो सब परमेश्वर का है। We are not the owners. हम इसके मालिक नहीं हैं। God is the owner. परमेश्वर इसका मालिक है And He has given all these blessings to us और उसने सारी आशीषें हमको दी हैं so that we should become good managers. ताकि हम एक अच्छे प्रबंधक बने। If we don't use those blessings meaningfully and positively and responsibly, यदि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं then we will be in the danger of losing all of them. तो फिर हम खतरे में हैं और हम उन सारी चीज़ों को खो देंगे And restoration will not come. और जो पुनर्स्थापन है वो फिर नहीं आएगा। If you want to restore the things, you need to be good steward
with whatever God has already given to you. यदि आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें पुनर्स्थापित हो जाएं, तो फिर जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति आप विश्वास योग्य रहें। You need to be faithful and good steward with what you have received. It may be less or may be very little. जो हो सकता है कि कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसके अच्छे विश्वास योग्य भंडारी रहें। Because we are accountable to what God has given to us in this earth. क्योंकि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के प्रति जवाबदेही हैं। One day, एक दिन God will take the account of everything that God has given to us on this earth. एक दिन परमेश्वर इन सारी चीजों का जो उसने हमको पृथ्वी पर दी हैं उनका हिसाब वो लेगा। So whatever God has given to you, तो जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया it है, may be visible, हो सकता है वो देखी वस्तुएं हो, invisible. अनदेखी हो, It may be small or big. हो सकता है वो छोटी हो या बड़ी हो। You and I need to learn how to manage them. तो आपको और हमको सीखना होगा कि हम उनको कैसे कैसे उसको प्रबंध करें उनका। You are the manager of the things of God. आप परमेश्वर के चीजों के प्रबंधक हैं। So this is very serious issue in Christian life. तो ये मसीह जीवन में एक थोड़ा गंभीर मामला है। You cannot just waste away the blessing that God has graciously given to you. आप उन सारी चीजों को जो परमेश्वर ने आशीषें दी हैं आप उनको यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। And many things will never come back again. और फिर कुछ चीजें दोबारा कभी नहीं आएंगी। Like good health and vigorous life. अब देखिए एक अच्छा स्वास्थ्य और ताकतवर स्वास्थ्य And time. और समय। Time will never come back. और समय फिर दोबारा नहीं आएगा। Yes, money can come back. जी हाँ, धन दोबारा आ सकता है, But the life will not come back again. लेकिन जो जीवन है वो दोबारा नहीं आएगा। So we want to encourage you, my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आपको उत्साहित करेंगे that whatever God has given to us, कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है those are resources, वो सारे साधन, and they may be human resources. चाहे वो मानवीय साधन हो, We must not misuse them. हमें उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। We need to use them wisely, हमें उनका इस्तेमाल बुद्धिमानी के साथ करना है, knowing that one day we will have to give an account to God. और ये इस बात को जान रखिए कि एक दिन आपको परमेश्वर को उनको हिसाब देना होगा। You very well know the parable of the 10 ants. आप बहुत अच्छी तरीके से तोड़े के दृष्टांत को जानते We हैं। have mentioned in our previous messages हाँ, about it. हाँ, उसके बारे में हमने अपने पिछले संदेशों में बातचीत की थी। And you know the last one, he was at least given one talent, did not use it wisely. आप जानते हैं एक तोड़ा जो उसको दिया गया था उसने उसका इस्तेमाल बुद्धिमानी के साथ नहीं किया। And the Bible says, take it from him और बाइबल कहती है कि उसने उससे ले लिया उसको and give it to the one who already had 10. तो उसको दे दिया जिसके पास पहले से ही 10 थे। Sometimes people complain, कई बार लोग शिकायतें करते हैं, why God has not given me this thing while he has given lavishly to other people. कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने वो चीज़ें हमको क्यों नहीं दी जो दूसरे लोगों को दी, जो उसका इस्तेमाल बड़े वैभव के साथ कर रहे हैं। It may also be a reason इसका ये भी कारण हो सकता है that this person has not used God given property, God given blessings in a responsible way. हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर ने उसको चीज़ें साधन दिए हैं उनका इस्तेमाल उसने बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के तरीके से नहीं किया हो। That is why God is not giving him any more blessings. और इसीलिए परमेश्वर ने उसको अब आगे और आशीषें ना दी हों। So if you want to restore things in your life, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में चीज़ों को पुनः स्थापित करना, come back to God. तो परमेश्वर के पास वापस Search आएं, your heart. अपने हृदय को जांचें, See the things around. अपने आसपास की चीज़ों को देखें, How you have used God's blessings so far. कैसे अभी तक आपने परमेश्वर की आशीषों का इस्तेमाल किया है। And if you think
in the light of the word of God that you have failed in this aspect, आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखें कि क्या अब आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करने में असफल हुए हैं, then you have another opportunity now. तो अभी आपके पास एक और मौका है। Confess to God. परमेश्वर के सामने अंगीकार करें। Ask the Lord, the Holy Spirit to help you. परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपकी सहायता करें, Show the ways how you can march forward. कि वो आपको दिखाएं कि कैसे उन मार्गों को कि कैसे और आपको आगे बढ़ना है, How you can make necessary corrections कैसे आपको जो ज़रूरी सुधार हैं वो करने हैं, so that you will not miss further blessings that God has intended to give to you. ताकि जो आगे की वो आशीषें हैं जो आपको देना चाह रहा है उनसे आप वंचित ना हो जाएं। We desire that you will become a good steward of the things of God, हमारी ये इच्छा है कि आप परमेश्वर की वस्तुओं के एक अच्छे भंडारी बने, because nothing belongs to us. क्योंकि कुछ भी हमसे संबंध नहीं The रखता है। Bible says बाइबल कहती है the earth and heaven belong to God. कि स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है। Everything that you see, it does not belong to you. जो कुछ आप देखते हैं वो आपका नहीं है, It does not belong to any man. वो किसी भी मनुष्य का नहीं He है। has come to use them, and one day he will go away from this earth. वो उसके पास आया है उसका इस्तेमाल करने के लिए, और एक दिन इस पृथ्वी पर से वो चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And as a church leader और एक चर्च के अगुवे होने के Pastor, नाते, पास्टर होने के नाते, and any responsible person you are in the church, आपके चर्च में कोई भी एक जिम्मेवार व्यक्ति क्यों ना हो, and you are responsible in your family, और आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं, use everything wisely. हर एक चीजों का इस्तेमाल बुद्धिमानी के साथ करें। Yes, I feel sorry many times when I see people wasting away their time. मुझे बड़ा दुख होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि लोग अपने समय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, And later on they feel regret. और फिर बाद में उनको इन चीजों का पछतावा होता है। Then everything has already gone. तो तब तक सब चीजें जा चुकी होती हैं। But as a Christian believer, लेकिन एक मसीह विश्वासी होने के we नाते have one more opportunity to come back to God. हमारे पास एक और मौका है कि हम फिर से परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray together? आइए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you that you have given us everything that we need. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो चीज़ें हमें आवश्यकता है वो आपने हमको दी हैं, so that we can live peacefully and comfortably on this earth ताकि इस पृथ्वी पर हम आनंद का और सुख का जीवन जी सकें, and extend the kingdom of God on this earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। This is the main purpose that God gives us blessings. तो ये परमेश्वर का विशेष उद्देश्य होता है आशीषों को देने का। Father, we thank you. पिता, धन्यवाद करते And we हैं pray that you will teach us to become good steward in the things that God has given to us. और हमें सिखाएं कि हम परमेश्वर की वस्तुओं के एक अच्छे भंडारी बन सकें। Father, we pray पिता, हम प्रार्थना that करते help हैं our dear brothers and sisters who are watching us. हमारे वो भाई बहन जो हमको देख रहे हैं उनकी सहायता करें, It will help them to bring about the restoration in their lives. उनके जीवन में पुनर्स्थापन फिर से स्थापित हो। And we have not been, and if we have not been good stewards, forgive us यदि हम अच्छे भंडारी नहीं रहे तो हमें क्षमा करें, and help us so that from now onwards we will be good stewards of the things of God. और हमारी सहायता करें ताकि हम परमेश्वर की चीजों के एक अच्छे भंडारी बन सकें। Bless our hearts and wisdom ओ प्रभु, हमारे हृदय को और हमारी बुद्धि को आशीष दे, so that we will take right decision in the right time. ताकि हम सही समय पर सही फैसले कर सकें And please your holy name. और आपके नाम को महिमा दे सकें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Bless everyone. हर एक को आशीष And दे, in Jesus' name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen आमीन and amen. और आमीन।